Jai Hind students, up till now we have studied so far about the struggles against the British rule. Today we are going to discontent against the British rule. Let us to recap some previous paragraph, like the how many clans, sipais, religious leaders, sannyasi, tribals which made them stand up against the British. Today we are going to start discontent against the British rule. Number one, plight of peasants and artisans. The condition of the peasants had become worse, under the land revenue system introduced by the British. लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो कि ब्रिटिश ने जो शुरुआत की थी, इसके वजह से प्रजा की किसान की कंडीशन बहुत खराब था. The displacement of old जमींदार did not lead to any improvement of the condition of the peasants. ये जो जमींदार की जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था, इसमें भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई थी पीजान की, किसान की. The demand for revenue in most cases had increased. डिमांड इनका बढ़ते गया था. Adding to their misery, the old cottage industry was ruined. जो पुराना मेरे घरों ही जो इंडस्ट्री था, कारखाना था, ये सारे सब नष्ट कर दिया गया था. The suffering of peasantry and artisan plunged themselves in the battle to overthrow the British rule. So, as a result, they were going to start against the British rule from India. British जो एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम इंडिया, वो लोग चाहते थे कि ब्रिटिश को हमें भारत से बाहर निकाले. और फियर ऑफ लॉस ऑन द रिलीजन कास्ट, इनका डर था, धर्म कास्ट हमारे नष्ट हो रहा है ब्रिटिश द्वारा. द ब्रिटिश police had attitude had created several among the people that British government was determined to destroy their religion. वो लोग मैंने सोचते थे कि ब्रिटिश हमारे धर्म नष्ट करेगा, हमारी संस्कृति नष्ट करेगा, है ना, हमको क्रिश्चियन धर्म में चेंज कराएगा, कन्वर्ट. सम यूरोपियन मिशनरीज ओपनली डिक्राइड हिंदुइज्म एंड इस्लाम एंड कस्टम ऑफ द पीपल. सती हट मैंने अबोलिश्ड. सती धर्म जो हमारी एंशिएंट टाइम से चल जाता था, ये लोग सोचते थे कि ये भी हम वहाँ हमारे उठा दी. द ब्रिटिश ऑफन इवोन द कास्ट रूल, फॉर एग्जांपल इन द आर्मी, इन प्रिजन्स, द रेलवे कोचेस, है ना, कास्ट रूल भी हटा दिया मैंने दिया. तो द ब्रिटिश इग्नोर द रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ द इंडियंस. ब्रिटिश हमारी जो धार्मिक सेंटिमेंट को मैंने खत्म कर दिया, इग्नोर अनदेखा कर रहा था. Therefore, the fear of losing act and religion drove the Indian against the British. इसकी वजह से सारे इनके विरुद्ध में आ गए थे. और ग्रीवेंस ऑफ द इंडियन सोल्जर्स, सोल्जर्स सेना, ये क्यों इनके मैंने इनको लाइक करते थे. The rising discontent in the country was bound to influence the Indian soldier who formed 7-8 of the British government troops in India. They felt the injustice which old ruling families in India had been suffering. The increasing misery which common people had to suffer affected the soldiers. Besides, the Indian soldiers had their own specific grievance, because of which they become pioneers of the struggle. ये मेन थे हमारी जो स्ट्रगल में. क्यों थे मेन ना, ये आपको पता है आर्मी का रेस्पॉन्सिबिलिटी कितना था, उस मैंने हमारे कितना होता है हमारे देश प्रति. There is no scope for the Indian soldiers to rise in higher press of the army, and even of the promotion were close to them. ये क्यों डिस्प्लेस थे, ना इनका प्रमोशन बंद हो गया था, प्रॉपर सैलरी नहीं मिलता था. The higher post in the army were reserved for the European. जो अच्छे पोस्ट में ओनली जो यूरोपियन ऑफिसर को इन्होंने सिलेक्ट करते थे. There was a great disparity between the salaries of Indian and European soldiers. बहुत भेदभाव होता था इनके तनख्वाह में, सैलरी में. The Indian soldiers were treated with contempt by the European counterparts. और नेगलेक्ट होते थे लोग. The Indian soldiers, they were given an extra allowance which they were sent to war. When a war was over, the territory they had helped to conquer was annexed, and the allowance was withdrawn. ये युद्ध समय में कुछ हेल्प देते थे, जब वो ये कंप्लीट होता था फिर वो प्रत्याहार कर लेते थे, इनको वो हटा देते थे. At the same time, the Indian soldiers were given new rifle. इसी समय में हमारे एक
न्यू राइफल का शुरुआत कर हुआ था। their cartridge were smeared with the cow and pig's fat as a grease। उस समय क्या होता था, जो बंदूक जो होता है गन, इसको दांत में खींच के गोलियां वगैरह चलाते थे। लेकिन ये जो cartridge ये इनको माने वही पे माना जाता था, माने गाया और सूअर के जो चमड़ा में बनी हुई है। दिस cartridge had to be beaten before लोडिंग होने के बाद इसको दांत में काटना रहता है। This offended the religious sentiment of both हिंदू मुस्लिम सोल्जर्स। तो इसके वजह से और थोड़ा वो इनका सेंटिमेंट मैंने इनको अच्छा नहीं था भाई, लगता था कि ये हमारे धर्म नष्ट करेंगे। The offense caused to their religious sentiment aggravate their sentiment and created an explosive situation, है ना। और the uprising of the soldiers, ये सोल्जर्स का जो मैंने अपराइजिंग कहाँ शुरू हुआ था ना, मेरठ में। had been sparked on the 10th May 1857 when 85 Indian soldiers are convicted and sentenced to long period of imprisonment, जहाँ पे कि 85 इंडियन सोल्जर्स को इन्होंने सेंटेंस जो फांसी का सजा सुना दिया था, लॉन्ग टाइम इनको उम्र कैदी बनाया था। फॉर द रिफ्यूजल टू यूज द ग्रेजुएट कार्ट्रिज, क्यों ना ये मना कर रहा था कि हमें इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। और वो उसमें बैरकपुर मंगल पांडे थे लीडर, रिफ्यूज टू लोड दिस, क्या था इन्होंने मना किया था। व्हेन फोर्स्ड टू ओबे ऑर्डर्स ही अटैक्ड टू, ये सब जब उनको बाध्य करा गया, ये दोनों इंग्लिश लीडर को मैंने मार दिए थे। मंगल पांडे वाज कैप्चर्ड एंड सेंटेंस्ड टू डेथ बाय हैंगिंग, इनको भी फांसी पे लटका दिया गया था। दे वर दी बिगन एट दिस पॉइंट, ये मेन पॉइंट था सिपाही का, मैंने जो गुस्से में आके इन्होंने ये रिवोल्ट को मैंने वाइड स्प्रेड कराया था सारा जो देश में। और इन दिस लेसन, इन दिस चैप्टर we came to know that how Indians जो discontented against the British rule, when सिपाही as the one important of them, ना। आज इतना है। I hope you understood this। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में I will continue further।